I know it's a post-lunch session, so maybe everyone still has to gather their energies. But hopefully this session will also help you energize and get into the tea break with a fresh new perspective. So without waiting further, I would like to invite the panelists and also the moderator to please come on stage and start the session. I would like to invite first Sanjay Upadhyay sir, who is a senior advocate at Supreme Court. Then I'd like to invite Samar Basu Malik sir, also on the stage. Devnathan sir. Madhusudan sir as well. Kanchi Kohli ma'am. And Pooja Trivedi ma'am as well. So just a short introduction. Kanchi Kohli ma'am is an independent researcher. So is Madhusudan sir. Devnathan sir is a senior fellow at India Institute for Human Development. Sama Basu Malik sir is director at ICFG, and Pooja Trivedi ma'am is part of Common Ground Initiative. Okay. Thank you everyone for choosing this room. सबको यहाँ पर आने के लिए थैंक यू इस सेशन को, इस सत्र को चुनने के लिए. वी विल ट्राई एंड डू एज मच हिंदी इंग्लिश बिकॉज देर आर ऑल काइंड्स ऑफ ऑल लैंग्वेजेस एंड ऑल डाइवर्सिटी अराउंड, सो वी विल डू अ मिक्स ऑफ सो दैट सम एटलीस्ट नॉट टू क्रिएट कन्फ्यूजन इन योर हेड्स, बट एटलीस्ट आधी चीज़ें तो समझ लेंगे तो मतलब मे बी पूरी चीज़ें समझ लेंगे. उस तरह से शुरू करेंगे. तो I was first supposed to be sitting back and just enjoying the flight and responding to only one question. शुरुआत ऐसे हुई थी कुछ फ़ोन कॉल्स की, लेकिन वो आते आते बोला कि तुमको सबसे बात करनी है. So it's like so I've bravely taken on this mantle of speaking to really eloquent and experienced people around me, and looking forward to taking a lot of notes and learning through this process. So I think one of the main objectives of this session, क्योंकि relevance of commons FRA के लिए, FRA का the commons discourse के लिए क्या relevance है, forest governance का commons discourse के लिए क्या relevance है, that has been discussed over the last 2 days. And I think one of the main purposes of this session is to look ahead. आगे की सोचने की बात है. And I think this is the idea here is that, you know, we did have a situation back in 2006 जब उससे पहले ही build up हो गया था, but when the FRA did come in, it took, you know, I think lot of governance frameworks by storm, whether it is tribal governance, land, commons, community development, conservation. मतलब धमाके से you know, it came as and shook up a lot of things. And I think that was an important thing to take away from there. But over a period of time, I think समय लगा है to understand, rationalize, interpret, reinterpret, differentially interpret. वो अलग अलग दिशाओं में गया. It's gone in many different directions. And after a point, I don't know if how many of you think of it like that, वो थोड़ा routinized भी हुआ है. The FRA discourse has also gotten routinized in many ways within the government system, within the civil society system. And that is not to say कि forest rights as a concept has been routinized. लेकिन FRA का process कुछ हद तक administratively bureaucratized हुआ है. Now 18 years down the line, if we have to now think of, I will not say 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, that doesn't matter. लेकिन अगर हमको कॉमन्स के साथ जोड़ते हुए FRA को आगे सोचना है इसके बारे में, and imagine it, you know, imagining some encumbrances along the way, no encumbrances along the way, all encumbrances along the way, but imagine it.
आई थिंक थोड़ा सा पहले एक दो फर्स्ट कपल ऑफ डेज की प्लेनरीज में वो आया था. लॉट्स ऑफ फ्रेजेस वर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक ओपन योर माइंड, क्लियर थिंकिंग, लेट्स नॉट हमारी क्या सोच में गरीबी नहीं होनी चाहिए. लॉट ऑफ दोज काइंड ऑफ थिंग्स वर देयर. सो इफ़ यू हैव टू do that and think of FRA as not an end in itself, but as an entry point into something much more, then how can we actually visualize the future of FRA, combining it with the commons discourse? So Geetanja and Shritama, if I have not got the mandate right, you can talk to me at chai or beat me up at chai, but I have said it, okay? So anyway, so let's open up this conversation. I have 5 great speakers with me, and I have some indicative questions with me. And I think if we think of the Forest Rights Act process as not ending with vesting of rights, but opening up humongous possibilities, policy, planning, developmentalism, knowledge building, and much more, and conservation. How do each one of these, or for that matter, productivity, economics, all of that, how do each one of these speakers really relate to it? Let me start first with you, Sanjita. I think one of the main things that from your great long experience, not just with the FRA, but with community-based governance, और जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जंगल के लोगों के मुद्दे हैं, ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं. From that point of view, if you are thinking about FRA का क्या फ्यूचर है और उसमें ग्राम सभास का क्या रोल है, उन दोनों को जोड़ते हुए how do you see the next, I won't say 18 years, but from here on in many ways to build up? थैंक यू. सभी को जोहार. हमारे झारखंड में जोहार बोला जाता है, तो मैं जब आपको जोहार बोलता हूँ तो आप भी मुझे जोहार बोलिएगा. इसका मतलब आई रिस्पेक्ट योर इंडिविजुअलिटी. तो लेट अस कम टू द क्रक्स ऑफ द मैटर. बेसिकली मैं जो समझता हूँ कि कॉमन्स का परिवर्तन हमारे देश में हुआ कॉलोनियलिज्म के साथ साथ. कॉलोनियलिज्म मतलब ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म हमारे देश के कॉमन्स का चरित्र को ख़त्म कर दिया और उसके बदले प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट को लाया. ये हम लोग सारे लोग जानते हैं. और प्राइवेट प्रॉपर्टी बने स्टेट प्रॉपर्टी भी प्राइवेट ही हुआ. तो उस समय पूछा जाता था, हम पुराने किताबों में पढ़े हैं कि भाई ये ज़मीन किसका है या यह जंगल किसका है. तो लोगों ने कहा किसी का नहीं है. तो इफ़ इट इज़ टेरा नीलियूस देन इट मस्ट बी टेरा रेक्स. अगर किसी का नहीं है तो भाई ये तो हमारे राजा का है. उस समय रानी थी तो विक्टोरिया की है. तो शुरू में जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ज़मींदारी जब लागू किया तो ज़मींदारी क्या है, एक एक गांव को बेच दिया उन लोग और बेच के उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया. अब प्रोपाइटर्स बन गए. ये ज़मींदार क्या थे, प्रोपाइटर्स. ये नया शब्द है. मालिक हमारे खतियान में लिखा हुआ है, वो मालिक बन गए. जबकि कोई गांव का हिसाब से कोई मालिक होते ही नहीं है. मालिक तो ऊपर रहते हैं, मालिक तो ज़मीन पर है नहीं. तो ये कंसेप्ट का जो बदलाव आया, जो जिसको अंदर बेते ने कहा कि ये सिविलाइजेशनल चेंज हो गया हमारे देश में, एक सभ्यता ही बदल गया. और अब जो नया सभ्यता उन्होंने तैयार किया, हम लोग उसी सभ्यता में जी रहे हैं. अब पुराना सभ्यता में वापस जाना कैसे है, या जा सकते हैं कि नहीं, या जाएंगे तो क्या हम रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे या रिवाइव करेंगे, ये सब मुख्य बातें आएगी सामने. तो हम लोग इस चीज़ को लेके जब आगे बढ़ें तो हमने देखा आज़ादी के बाद उम्मीद थी कि पुरानी सभ्यता में वापस जा सकते हैं, लेकिन रिकन्स्ट्रक्ट करते, पुनर्गठन कर सकते. एग्जैक्टली तो रिवाइवल होता नहीं है, तो पुनर्गठन कर सकते हैं. जैसे कल ही हम एक सेशन में बैठे थे जहाँ मोहन जी और देवाजी इत्यादि और मनीलाल जी बता रहे थे कि भाई हम ग्राम दान करेंगे, हम पुरानी व्यवस्था में वापस जाएंगे. इसका मतलब, लेकिन ग्राम दान
कितना आदमी करेगा, आज की तारीख में क्या कर सकता है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन उन लोगों ने शुरू किया, देवाजी अपना गांव से मेंढा से ये चीज़ को शुरू किया है, पुरानी मॉडल में, पुराना जो हमारा कॉमन्स था उसमें वापस जाने का। अब इस संदर्भ में आप सोचिए एफआरए का क्या हाल है। जो हमने देखा झारखंड जैसे क्षेत्र में, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ बगल में, इधर उड़ीसा, ये जो मिनरल रिच एरिया और ऑल्सो जो फॉरेस्टेड एरियाज़ है, ये यहाँ पर एक कॉलोनियलिज्म तो ख़त्म हुआ 47 में, लेकिन हमारे यहाँ इंटरनल कॉलोनियलिज्म शुरू हो गया। उसके बाद ये हमारे एक नेता थे के रॉय बोल के, उन्होंने इस शब्द को पहले इस संदर्भ में कॉइन किया कि ये आंतरिक उपनिवेशवाद में हम लोग चले आए। अब एक आंतरिक उपनिवेशवादी सिचुएशन में कितना प्राइवेटाइजेशन का रूप क्या है आप देख लीजिए। जो छोटा मोटा कॉमन्स भी बचा हुआ था गांव में, जिसको हम लोग जीएम लैंड बोलते हैं, गैर मजरूआ ज़मीन, जो गांव का कॉमन्स था, माने आज़ादी के बाद पहले भी कॉमन्स था, अंग्रेज भी उस कॉमन्स को मान लिया था, उस कॉमन्स को भी इन लोगों ने प्राइवेट कर दिया, स्टेट प्रॉपर्टी बना दिया है, लैंड बैंक बना दिया है। अब थोड़ा मोड़ा जो कॉमन्स था वो सब भी आपका लैंड बैंक में चला गया, अब वो भी सरकारी हो गया। अब जनता के पास बचा क्या? तो इस परिस्थिति में जब हम एफआरए की संघर्ष में हम लोग उतरे थे, उस समय यही मांग थी एक्चुअली। शायद बहुत लोग इसको भूल गए हैं, लेकिन हमारे कुछ साथी जब शुरू किया था ये जंगल आंदोलन, उस समय व्यक्तिगत राइट की बात हो रही थी, व्यक्तिगत अधिकार की बात हो रही थी, क्योंकि लोगों को इंक्रोचर बता के गांव से, जंगल से निकाल दिया जा रहा था। तो उनका अधिकार की बात को लेकर मामला शुरू हुआ। लेकिन बाद में हम लोग जब इंटरवीन किए, हम लोग उस बात को थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास किया कि मामला व्यक्तिगत अधिकार की बात मात्र नहीं है, यहाँ मूल बात है कि हमारा खोया हुआ पुराना जंगल पर जो हमारा सामुदायिक अधिकार था उसको वापस होगा कि नहीं। अंत में उसको लोगों ने स्वीकार किया, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा बुद्धिबल और इसका प्रयोग हुआ। जैसे हमारे यहाँ हमारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास एक मंत्र है, वो एक लोक कथा है, उससे वो मंत्र आता है। मंत्र ये है कि 12 विद्या 13 छल, बुद्धि बल और बाहुबल, ये हमारे लोग बोलते हैं। मतलब 12 विद्या 13 छल, मतलब 12 विजडम एंड 13 क्राफ्ट्स आपको यूज़ करना पड़ेगा, तभी कोई आंदोलन आगे बढ़ता है। तो इसी के तहत हमको लगता है एफआरए का गठन हुआ। बहुत कुछ चीज़ हम लोग मांगे थे, नहीं मिला, वो छोड़ दीजिए, जो है उसी को अगर देखा जाए तो हम थोड़ा सा आपके साथ ये शेयर करेंगे कि इसमें आगे की बात आप बोल रहे हैं। ओके, या आई एम फिनिशिंग। तो हम थोड़ा बैकग्राउंड तैयार कर रहे थे तो उसके ऊपर कैसे करना है। तो पहले गांव सभा की मजबूती, क्योंकि गांव सभा ही कॉमन्स का कोर है, गांव सभा। तो गांव सभा को कैसे मजबूत करना है, तो हम लोगों ने पहले एसेशन ऑफ राइट्स बोल के एक प्रोग्राम शुरू किया कि सारा लोग गांव के लोग एक साथ बैठेगा, एक साथ खाना खाएगा, उस दिन एक साथ विचार करेगा और बोर्ड में लिखेगा कि हम इस जंगल का अधिकार अब गांव सभा को है अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, और जो गांव सभा को पूछे बिना इस जंगल में घुसेंगे उनको जरिमाना माने वो दंडनीय होंगे। इस तरह बोर्ड बना के लोग गाड़ दिए, तो बोर्ड गाड़ी आंदोलन उसको भी गांव के लोग बोलते हैं। तो एसेशन ऑफ राइट्स से हम लोग शुरू किया कि गांव अपना अधिकार को असर्ट करे एफआरए के तहत। एफआरए एक ढाल है लोग बोलते हैं। तो इस तरह उसके बाद हम लोग अभी एक जगह पहुँचे कि आप आपका गांव सभा को फाइनेंशियली भी मजबूत करना होगा। तो अब हम लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, देव जी और इधर संजय जी बैठे हैं और लोग हैं। तो हम लोग हमारे ब्रजेश भाई भी इसमें है। तो हम लोग अभी सरकार को अप्रोच, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट को अप्रोच कर रहे हैं कि गांव सभा को आपको फाइनेंशियली मजबूत करना होगा। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल जो जंगल में है वो इतना बड़ा जिम्मा ले लेगा कि पूरा गांव का आपका प्रोटेक्शन, रिजेनरेशन, मैनेजमेंट सब वही लोग करेंगे और एक पैसा भी नहीं है, कोई साधन नहीं है। तो ये आपको देना पड़ेगा उनको। ये एक बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में खड़ा करना पड़ेगा कि सरकारी खजाना को गांव में जाना चाहिए, ना कि ऊपर के कुछ हिस्से में वो रह जाए। और जानते हैं कि किस किस्म का इसमें
करप्शन का क्या लेवल है आप लोगों को पता है। तो गांव सभा में कैसे फंड जाए और फाइनेंशियली क्योंकि गांव सभा को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, इस दिशा में भी हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। तो आगे हमारे साथी और कुछ बोलेंगे एनटीएपी पर क्या काम संभव है, और कई एरियाज़ है जहां धीरे धीरे कॉमन्स को फिर से कॉमन्स में बदलने का, उसका चरित्र को कॉमन्स में बदलने का जो प्रयास है, ये एक लंबा स्ट्रगल है और हमको उम्मीद है कि इस स्ट्रगल में हम लोग जीतेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच संजय। आई थिंक ये आप लोगों से बात करने के एक्साइटमेंट में मैं ये सबको बताना भूल गई कि आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं। सो बट दिस वाज आई एम ग्लैड आई डिडंट डू इट बिकॉज आई थिंक दिस फ्रेमवर्क सेटिंग और इसको थोड़ा सा पीछे जाके आगे जाने वाली बात भी इट्स वेरी वेरी क्रूशल। But keeping that in mind, and I think keeping the kind of conversation and the kind of moment through which FRA actually came into being, और उस moment को अगर रखते हुए before and keeping that in mind and keeping that in mind for the future thinking, and I think I'm going to move to you, Madhu. I think अगर आप उस समय I think बहुत लोगों दो almost narratives अड़ गए थे एक साथ. One was this idea of assertion of rights, but the other was about how it relates to conservation. And I think conservation as being against rights or taking away rights, not being an ally of forest rights, but being a threat to forest rights. That kind of conversation was very much part of the whole thing. And वो थोड़ी सी वो अड़चने अभी भी आती हैं. But just wanted you to actually take your 5 minutes and actually tell us how do you see this as a problem, and how do you see it in the future if you have to address it or build on it and for the future of FRA. Thank you, Kanchi, and thanks for having me on this panel. Unlike many other people, I am an ecologist. I don't have direct experience in grounded people's movements like many of you do. So my interest in the FRA is as someone who's started in ecology and conservation, and it's a journey that began in wildlife, but I think today I feel very much engaged with the idea of how conservation must be done, and I think it's in that context that I see the FRA as a huge opportunity, unlike many other of my fellow conservationists who tend to see this as a threat. I think what began as a movement with zamindari abolition post-independence never completed its course with forestry, with the forest lands, and I think that left a very, very large impact up to the turn of the century. And you don't need a greater declaration of how unfairly our forests were sequestered and managed than the preamble of this talking about historic injustice. And in the euphemism of governments, historic injustice essentially means it was done in utterly unacceptable ways in which we sequestered our forests. So, in the context of commons convening, I want to talk about what I would think of as the conservation commons. A conservation that is not hegemonic, a conservation that is not provincial, not private, not as a mere mandate of one single department, not as the pursuit of a bunch of professionals like me, but as something that is a bunch of ideas and practices that allow a diversity of imaginations, ideas, and practices to flourish. And I think that's really where I see the huge opportunity with the Forest Rights Act. And with protected areas, I think there was as Kanchi said, the rights movement saw conservation as an obstacle, but conservation saw the rights movement as an obstacle too. So protected areas have been the linchpin of conservation in India. The Wildlife Act came in 1972, and as I have been telling a lot of my colleagues, if you really looked at the intent of the Wildlife Protection Act and its implementation, its entire intent has been completely undercut and undermined by the way it has been implemented.
all its rights recognition, settlement, the determination and settlement processes have been systematically pushed aside. Nowhere has the process of law actually follows what the letter of law laid down. And at the end of it, we have created over 1,000 protected areas under the Wildlife Protection Act today, which are about 175, on average, 175 square kilometers apiece. And just to give you a sense of what that means, if you use the NTCA's own numbers, 800 to 1,200 square kilometers for a viable tiger population, which, I think there are problems with such a number. An adult male elephant needing between 600 and 1,000 square kilometers in which to live. And our average protected area is 175 square kilometers. And it would be really far-fetched to pretend that, with our protected areas alone, if we just protected our protected areas, we would be able to conserve wildlife. If we converted the rest of our landscapes into a moonscape, because we're going to allow infrastructure, energy, mining, everything that has to come there, I don't think this is the way we can do conservation. And there is a very fundamental problem where in the way we practice conservation, where we have taken ecological ideas and then tried to give them legal expression. And I think there are huge problems in this process of translation. Examples are like a corridor, irreversible damage, inviolate area, critical habitat. These are useful ecological concepts. But the moment you try to set this down in law, it becomes a very blunt instrument which can end up causing an enormous amount of injury, but conservation really needs much finer ways of managing things. So, and the other fundamental problem with the way we've done conservation, to which the FRA is counter, is we have, in the way we've come down, we've had one department. We must remember that at the point of time when the Wildlife Protection Act was created, the Forest Department was already 108 years old. So a new aspiration to conserve wildlife was handed to a century-old organization that was created with a colonial imagination. And while there are exceptional individuals, the impulse of the organization is still fundamentally colonial, and I don't think there is much doubt in that. So, I mean, as many of my colleagues have said, don't romanticize local communities. I think it's also important for us to realize that we must not romanticize the department in whose hands we've placed conservation, and to say conservation is therefore taken care of because they have a legal mandate, the power to do so. It doesn't mean that it's actually being done. So, one or two minutes? One, yeah. So the point I'm trying to make is that conservation is part of an ordering of priorities today, where we might, if we were to say, there are various ways of doing conservation. Conservation being the goal and mandate of a department doesn't automatically make conservation happen. That conservation is the byproduct of ways community use a space doesn't disqualify them. So I think we need this diversity of approaches, and it is so in the current way it works, conservation is so important that we must even displace communities to do conservation, but economic growth is so much more important than conservation that we have to displace conservation to make way for economic growth. And here, I don't think our existing structures of conservation have actually helped. So I think if conservation is about trying to protect the diversity of life, you really can't do it with a monoculture of management. You need a diversity of management. And here is where the FRA really provides the opportunity to create very diverse institutions and diverse imaginations and practices of conservation. And finally, I think what I want to say is that conservation, all of us, I think, in this room would agree with this, conservation is a fair end. All of us want nature to be able to thrive and flourish. But I do not think it's possible, and definitely not in a democratic country like ours, to pursue a fair end with foul means. We need a fair means with which to pursue fair ends. And I think
here the process by which you do conservation is just as important as the outcome. I don't think we can use any foul process to achieve a fair outcome. I think that's again a place where the FRA makes a lot of space. So it gives us a template for inclusivity, alternate worldviews and knowledge systems, complete alternate ways of imagining economies, management systems, and that's where I think to be able to bring this in would enrich conservation rather than undermine it. Thank you. I'm not going to try and paraphrase it or translate it and or anything like that. Before I move on to the two of you, which is basically about decentralized governance and law and policy frameworks, I'm going to bring a third aspect in the mix, which is markets. And I think जब we started FRA का process शुरू हुआ, and we started with the idea of democratizing governance, community-based governance, rights-based discourses, completely, devolution of powers or re-engagement or reappropriation of powers to be able to do forest management and forest governance, and come in and bring the idea of conservation in that mix. This entire narrative has a love-hate relationship with markets. FRA as a potential to engage with markets, FRA actually being impacted by markets. So with that very difficult mandate, if you have to imagine FRA 18 years after it was first enacted, keeping in mind its original ethos, how do you visualize the role of markets? And how do you actually think whether the markets are a problem, they can be an ally, they can be both? Over to you, Pooja. Thank you so much, Kachi. So maybe 20 years later, if I would want to see markets, not just markets actually, if I can say the economy or local economy. So the way I would want to envision is a strong economy based on local ecology through efficient market systems and community leadership enabled by the government, supportive government actions. So for that, like all of those things, a strong economy along with community leadership, with ecology also there, all of these things together. Where are we when we see when we are doing this envisioning? Today, and I will restrict my conversation to the non-timber forest products because that is what is the most relatable when it comes to these markets. The non-timber, the market failure, if we can talk about with regard to the non-timber forest produce, there is a lot of information asymmetry that exists, and this is particularly in the upstream level, particularly at the level of the collectors. They bring the produce from the forest, then it gets sold off to the traders. They do not know after the traders, they do not know where it goes, what happens to the product. That information is not there with them. And so especially at this level, the information asymmetry that exists, which is specially created by the intermediaries. I'm not trying to demonize the intermediaries, but then this is also created by the intermediaries to have a better price at their own level. However, at the upper level, there is not much information asymmetry if we see at the level of traders to the downstream market. So that is a big challenge which is existing at this point, and it is primarily because there is no transparent data structures, mechanisms, etc. The other thing is, given the linear nature of the markets, or if we can put them as value chains, they tend to be overexploitative. So how maybe by many companies, despite the fact that they may be putting in a lot of efforts, but they tend to be overexploitative. Third thing is, Gram Sabhas have a very critical role to play when it comes to in FRA and extraction or taking the produce from the forests. However, the current institutional structures that are there in place, be it the farm producer organizations or Bandhan Vikas Kendra that we have, all the self-help groups, which are being leveraged at this point, they are in a very nascent stage, and there is no connection between these structures and the governance structure.
So while the markets have to should be able to operate freely, that should be there, but either in terms of regulatory manner or in terms of motivations, the local governance has to play a role in terms of how the exploitation or how the extraction from the forests is happening. So the fourth thing I would say is, unlike the agricultural markets, where the innovations now, because it's been years and years, and there are innovations at all levels, at the level of like really decentralized levels and at the upper level as well. The innovations are there. Whereas in this particular market, in the case of non-timber forest produce, there are very low innovation, given the fact that it's very the FRA is very recent that way comparatively. So there is a lot of scope for innovations, but that is still not there. So given this context, what is it that we would wish to do so that we attain a better economy with regard to forest produce, as well as ecology also has goes hand in hand. So 5 things as we see. The biggest thing is information asymmetry. How do we really address that? How do we make it a very transparent structure, not just for ourselves, essentially for the people who are the collectors, for the people in the community who are actually dealing with this, for whom this is bread and butter for them. So digital definitely has a role to play, but there are many other mechanisms. So addressing the information gap is very critical. Secondly, the ecosystem services that people that come from the forests, who will pay for that? So it's critical that we have proper structures. So we have this in watersheds. Like watersheds have, I wouldn't say cracked it, but then there are mechanisms where the payment for ecosystem services is happening in that case. So in the case of commons also, it could be through government financing, through user finance, compliance-based, voluntary markets. Whatever is the means, we should be able to come up with various ways in which the ecosystem services get paid. One of it is also the ESG, the environment, social and governance mechanism. So from here, I would want to move to the role of the corporates in making the entire supply chain and value chain more sustainable, to have more sustainable business models, so as to ensure that the ecological restoration happens hand in hand. So, and for this, maybe one of the things could be better reporting frameworks, which of course we're trying to come up with, but there's a long way that we go on this. So better reporting frameworks which regulate, motivate companies to 2 aspects at least to bring in with regard to ecological restoration, what is it that is happening, and also how the community participation is happening there. Third thing I would want to bring in here is landscape financing. So it is very critical. Yeah, I'll close in 2 minutes. Landscape finance. So if we see in the NTFP space, the infrastructure is a big problem. We don't have appropriate storage facilities, transport facilities for NTFPs, given the nature that they're also many times perishable commodities. So different types of financing instruments are required, and we need public, private, and philanthropic capital to come together for ecological restoration, as well as entrepreneurial, to build entrepreneurial capabilities at the local level as well. And the final thing I would want to say here, in fact, 2 things here in this one particular area. So a strong infrastructure, as institutional infrastructure. There are VDVKs. So how do we strengthen the local institutional mechanism to, for better resource conservation, extraction? How do we want to call it? So basically ensuring that there is ecological restoration that happens. It goes hand in hand while the markets are also operating. And innovations also have a very critical role to play. How do we bring in decentralized innovations so that women in particular, if they can take up some value addition at the local level, which is not happening at this point in case of NTFPs. So yeah, thank you. Thank you. What may seem to be 3 very different narratives are all interested in FRA. And they're all interested in the future of FRA.
and they're all, I think, talking about at least very clearly जो बात निकल के आ रही है, what they're really talking about is that the imagination of the future is through devolution of powers, decentralized institutions, and that is where I think I wanted to bring these three. If we have to take the role of the Gram Sabha, the power of the Gram Sabha, conservation commons, and markets, who are all currently invested in the idea of FRA. If you have to actually imagine how it's going to happen in the future, based on how it's been envisaged in the past, whether it is through Gram Panchayat development plans or any other decentralized mechanisms, so that the ethos of the of FRA is actually not lost, but it is able to embrace other interests. To be able to imagine next few decades at least of FRA. So Devnathan sir, I'll pass the baton on to you, and with this bringing these three narratives that are pretty much dominating. There could be others as well, but at least these three narratives dominating the FRA discourse right now, and seamlessly then pass it on to you, Sanjay, to be able to build on that from your experience. And I think, 5 minutes each. Yeah. थैंक यू. मैं थोड़ा सा हिंदी में बोलने के लिए कोशिश करूँगा कि ग्राम सभा के हाथ में जंगल संभालने का अधिकार क्यों होना चाहिए और आगे उसको आगे कैसे बढ़ाएं. जैसे संजय ने कहा, संजय बसुमल्लिक, जब अंग्रेज़ का शासन बना तो उसके साथ साथ उन्होंने जंगल का संभालने का तरीका भी बदल दिया. जो उस इलाके के लोग या किसी एक गांव के लोग अपने आप करते थे, उनको हटाकर वो मैनेजमेंट का अधिकार दे दिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को. और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में कहाँ से सीखा? उन्होंने सीखा जर्मनी से. इंग्लैंड में तो कोई ऐसे जंगल नहीं था, क्योंकि वैसे रॉबिन हुड तो था ही जंगल में, मगर उस प्रकार के जंगल नहीं थे. जर्मनी में था, और उन्होंने वहाँ शुरू किया एक विषय जिसको बोलते हैं वैज्ञानिक फॉरेस्ट्री, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री. उसका मतलब क्या था कि जो चीज़ वो चाहते हैं, जिसका मार्केट में कोई दाम हो, उसी का वहाँ बढ़ना चाहिए. टिम्बर जो लकड़ी है जिससे जहाज़ बनाते हैं या घर बनाते हैं, सिर्फ उसी को बढ़ाने के लिए जंगल को संभालना चाहिए. शुड बी मैनेज्ड ओनली फॉर टिम्बर. ये इसको नाम दिए हैं साइंटिफिक फॉरेस्ट्री. और जो वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, उनका जो ज्ञान था जंगल अपने ज़रूरत के लिए संभालने का, उसको वो बोले कि ये तो ज्ञान नहीं है. दिस इज़ नॉट नॉलेज, दिस इज़ इग्नोरेंस. मतलब दो प्रकार के ज्ञान हो गया. एक है जिसके ऊपर एक मोनोपोली है, एक अधिकार है, और दूसरा है जो सामान्य है, इन द कॉमन्स. जो सामान्य ज्ञान है उसका कोई कीमत नहीं है, और जो जिस ज्ञान का एक अधिकार है उसी का मोनोपोली, उसी का एक कीमत होता है. तो ये फ़र्क पड़ जाता है दो प्रकार के लोगों के बीच में. और आजकल ये सिर्फ दो प्रकार के लोग नहीं हैं, दो प्रकार के देश भी हो गए. एक है जो जिसको विकसित बोलेंगे या ग्लोबल नॉर्थ बोलेंगे, जिनके हाथ में ये मोनोपोलाइज्ड नॉलेज है. आप जितना भी कंप्यूटर यहाँ देखिए, सब में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लगभग सब में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ चलता है. वो एक चीज़ वो बना दिए, उसके ऊपर उनका एक अधिकार है, जिससे वो दुनिया के सबसे बड़े कंपनी में एक बन गए हैं. तो वो हो गया उनके हाथ में. और हमारे जो देश है, हमारे जैसे देशों के हाथ में है जो सामान्य ज्ञान, नॉलेज इन द कॉमन्स. जैसे ये कपड़ा कैसे बनाना, आजकल सोइंग मशीन चलाना बहुत आसान है, और 2-3 दिन में कोई भी सीख लेता है. सरकार भी स्किल्ड वर्कर्स को बना देते हैं 1-2 हफ्ते में. तो दैट इज़ नॉलेज इन द कॉमन्स. तो उसके लिए आपको सिर्फ कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, साधारण प्रॉफिट मिलेगा, और उसका आपको कम से थोड़ा सा वेजेस मिलेगा, उससे कुछ नहीं. तो इसी प्रकार के दो ज्ञान है. एक ज्ञान जिसको साइंटिफिक बोलते हैं, दूसरे है जो
साधारण लोग जिसको इस्तेमाल करते हैं जंगल में, फॉरेस्ट में, जो जानते हैं उस ज्ञान को एज नॉट नॉलेज, एज इग्नोरेंस बना दिए। तो पहले हमारे काम है कि इस ज्ञान को, ज्ञान का दर्जा देना, टू रिकग्नाइज दैट दिस इज़ नॉलेज, दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। ये नॉलेज कैसे होता है? आप देखिए कि आर्कियोलॉजिस्ट हमको कहते हैं दुनिया में कोई ऐसे जंगल नहीं है जिसको लोगों ने नहीं बनवाया, कोई प्रिस्टीन फॉरेस्ट नहीं है जो अपने आप बन गए, लोगों ने उसको बनवा दिए। वैसे कैसे? अगर आप किसी पेड़ को चाहते हैं, आप दूसरे पेड़ को वहाँ उगने नहीं देंगे, यू विल कट इट डाउन एज यू गो बाय। तीसरा, जैसे कि आपको लग रहा है कि ये कुछ ख़राब हो रहा है तो आप उस पर कुछ कर लेते हैं, उसको काट देंगे या उसके ब्रांचेस काटेंगे। तो ये सब तरीका है मैनेजमेंट का। उस ये नहीं कि सिर्फ उसको एक पालतू चीज़ नहीं बनाए, इसको पाला नहीं उस रूप में, मगर उसको मैनेज किए। तो ये ज्ञान है जिसको FRA की तरफ से दोबारा लाने की एक कोशिश हो रहा है। इसीलिए इसको लेकर ग्राम सभा का महत्व बन जाता है मैनेजमेंट में। अगर ये ज्ञान नहीं होता तो फिर मैनेजमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बस वही चलाना है जैसे FT चलाता है। इसीलिए जैसे संजय बसुमलक ने कहा, हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं जब उनको मैनेजमेंट का अधिकार है और जानकारी भी है तो उनको उसको संभालने के लिए, उसको चलाने के उनको एक फाइनेंस भी होना चाहिए। तो वो एक कदम है। तो मगर उसके आधार क्या है? उसका आधार ये है कि लोगों के पास ज्ञान है, सब कुछ तो नहीं जानते हैं मगर कुछ तो जानते हैं। दे नो वाई, दे मे नॉट नो वाई, क्यों हो रहा है शायद नहीं जानते हैं, मगर क्या हो रहा है जानते हैं, कैसे होता है वो भी जानते हैं, क्यों हो रहा है वो उनको और आगे बढ़ाने के लिए उनको एक प्रकार के सीखने की भी ज़रूरत है। तो ये एक प्रोसेस होना चाहिए, मगर वो प्रोसेस का आधार ये होगा कि लोग जो जंगल में रहने वाले हैं उनको उसको चलाने का, उसको संभालने का काफ़ी ज्ञान है। उस ज्ञान को अपना मैनेजमेंट सिस्टम का आधार बना के ही उस जंगल को संभाला जा सकता है। ये नहीं कि सिर्फ जो लोग जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के टेक्निकल स्पेशलिस्ट जिसको बोलते हैं उन्हीं को लाके वो चलाना है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग यही जानते हैं कि टिम्बर को कैसे बढ़ा सकते हैं, उनको जो चीज़ की कीमत है या मार्केट में जो कीमत है उसको हम कैसे बढ़ाएं, और कुछ नहीं। ये ही इसलिए वो मोनोकल्चर करते हैं, कई प्रकार के चीज़ और करते हैं, कई प्रकार के मैनेजमेंट सिस्टम चलाते हैं जिससे नुकसान होता है। तो इसीलिए हमें ये जो नॉलेज इन द कॉमन्स और कॉमन्स में बहुत संबंध है, फॉरेस्ट इन द कॉमन्स और प्रॉपर्टी इन द कॉमन्स और नॉलेज इन द कॉमन में बहुत संबंध है। और इन दोनों को ही एक जगह देने के लिए फॉरेस्ट अधिकार हमें कुछ इट गिव्स अस अ स्पेस जिससे हम उसको एक जगह बना सकते हैं और ये मैनेजमेंट आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। Thank you so much. I think this is a great segue to, if you could just pass it. Sanjay, I think, we've spoken about so many dreams through the FRA and the ideal situations. And I think when it comes to brass tacks of the legal and policy framework, some of these dreams are possible, some of these dreams are not possible, and you've been in the thick of it all. So I think I'm just going to hand it over to you to that. थैंक यू कांची। सभी को मैं भी जोहार कह सकता हूँ संजय भाई, क्योंकि मैं भी झारखंड से आता हूँ। जो मैं समझ पाया इस पूरे संदर्भ में, वन अधिकार कानून को हम आगे उसका क्या स्वरूप हो, कैसे उसको सोचें, इसको जानने से पहले मुझे लगता है कि हमें एक दो बार फिर से उसकी जो बुनियादी जो अस्तित्व है उसको भी समझना फिर से पड़ेगा। और वो हम अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि अब चूँकि 18 साल हो गए हैं और मेरे ख़्याल से 2 दशक भी हो जाएंगे बड़े जल्दी, और हमें जो बुनियादी बात जिसकी वजह से ये कानून बना था और उसको आगे का क्या स्वरूप होना चाहिए वो भी देखना है, तो हमें फिर से वो बुनियादी बातें याद करनी पड़ेंगी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस कानून का जो आधार था वो ये नहीं था कि हम किसी को अधिकार दे रहे हैं। सबसे पहली बात थी कि ये अधिकार था, उसको हम मान्यता वो कर रहे हैं, मान्यता दे रहे हैं। इट वॉज़ नॉट अबाउट गिविंग ऑफ राइट्स, बट इट वॉज़ अबाउट रिकग्नाइजिंग अ प्री एग्जिस्टिंग राइट। तो सबसे पहली एक बुनियादी बात ये थी,
और जाहिर है उसके लिए एक फ्रेमवर्क था कि उसको किस तरह से किया जाए वगैरह वगैरह। और ये अधिकार अपने आप में सिर्फ अधिकार नहीं था, उसके साथ एक जिम्मेदारी भी थी। और हम लोग कई बार अधिकारों की बात उतना ही करते हैं और जिम्मेदारी की बात थोड़ी कम कर लेते हैं, क्योंकि पता चलता है किस खेमे से आप हैं उसी अनुसार आप बात करते हैं। लेकिन कानून इसको दोनों तरीके से देखता है, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। और साक्ष्य था ये बिल्कुल, जब हम लोग इस कानून पे पहल कर रहे थे, मुझे याद है कि सेटलमेंट जो होता है, बंदोबस्त जिसको कहते हैं, और रिकग्निशन, ये दो अलग शब्द हैं। बंदोबस्त बहुत गलत हुआ था, बहुत सारे प्रमाण हैं उसके। आज भी हम देखते हैं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर हो, चाहे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर हो, चाहे अलग अलग राज्यों के फॉरेस्ट एक्ट हों, आज भी हम प्रपोज रिजर्व फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अभी भी सेटलमेंट नहीं हुआ। आप कई राज्यों में चले जाइए, आपको ये दिखेगा। तो ये भी एक बुनियादी बात थी कि ये सेटलमेंट जो था वो ठीक से नहीं हुआ था और लोगों के अधिकारों का हनन हुआ था, इसलिए इस कानून को लाया गया था। और एक और इसमें बहुत अहम बात है कि मेरी साइकिल वर्सेस तुम्हारी साइकिल। अगर मेरी साइकिल है तो मैं अच्छे से रखूँगा, अगर पब्लिक प्रॉपर्टी है तो मैं उतने अच्छे से नहीं रखूँगा। तो इसलिए वो जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की बात होती है इस कानून को लेके, वो भी इस कानून का एक बहुत ही अहम अंग था। उसके बाद मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं इस कानून के बारे में सोचता हूँ कि जो एक इमेजिनेशन था उस वक्त, कि इसमें बहुत सारे पहल की गई थी जो हम शायद अब भूलने लगे हैं, जो मुझे लगता है हमें याद दिलाना चाहिए। शायद ये पहली बार ऐसा एक कानून था जहाँ 4 विभाग एक साथ मिलकर उस राइट को रिकग्नाइज कर रहे थे। ये पहले कभी नहीं हुआ है। राजस्व विभाग, वन विभाग, आदिवासी कल्याण विभाग और पंचायती राज विभाग, ये चारों विभाग एक साथ मिलकर किसी अधिकार को रिकग्नाइज या मान्यता प्राप्त करें या प्राप्त करवाएं, उसके लिए ये पहल था। ग्राम सभा या गांव सभा दो अलग चीज़ है। संजय दा ने बड़े सूक्ष्मता से मेरे ख्याल से गांव सभा इस्तेमाल किया, ग्राम सभा नहीं। लेकिन पहली बार ग्राम सभा को एक वैधानिक अस्तित्व मिला, ये भी इसी कानून से मिला, जो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले ग्राम सभा कभी भी एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं थी। और उसका एक मूल कारण था कि जब तक हम किसी भी इकाई को एक वैधानिक स्तर नहीं देंगे, उसके अंदर वो पावर नहीं होगा कि वो आगे कार्य कर सके। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी इस कानून में। लोग आजकल कम्युनिटी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो इस कानून का एक अहम हिस्सा है, उसके बारे में बात भी नहीं करते हैं। जो सामुदायिक ज्ञान था, उसके ऊपर जो वर्चस्व है जो गांव सभा के लोगों का, उसके बारे में भी बात बहुत कम होती है आजकल, जो एक बहुत अहम प्रकरण है इस पूरे कानून में, जो हमें समझना पड़ेगा। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स की बात बहुत होती है, लेकिन उसका जो पारंपरिक बाउंड्री का जो डिमार्केशन का जो प्रोसेस है, वो भी बहुत कम हो रहा है, जो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अहम मुद्दा है इस पूरे कानून को लेके। उसके बारे में भी हम बहुत ज़्यादा बात अब नहीं करते हैं। एम्पावरमेंट टू कंजर्व, बहुत सारे इसमें नई चीज़ें हैं। जो डेवलपमेंटल राइट्स की बात है इस पूरे कानून में, उसको हम अक्सर भूल जाते हैं कि वो शायद सामुदायिक अधिकार की बात हो रही है, लेकिन डेवलपमेंट राइट्स और सामुदायिक अधिकार दो अलग चीज़ हैं इस कानून में। उसको भी हमें दोबारा से सोचना पड़ेगा, मुझे लगता है। कम्युनिटी बेस्ड प्लानिंग, सामुदायिक स्तर पे जो योजना है बनाने की जो शक्ति है और उसको जो वैधानिकता दी गई है, ये शायद पहली बार दी गई थी इस कानून में, जिसके बारे में हम बहुत कम चर्चा करते हैं। और इस वैधानिकता को हम इस्तेमाल भी बहुत कम कर पाते हैं, जो भी हमें करना पड़ेगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और मुझे लगता है, जब मधुसूदन बात कर रहे थे कि क्या हम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को एक कंजर्वेशन टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट शायद संसाधन और उस प्रबंधन का सबसे अहम और सबसे ताकतवर एक टूल है, लेकिन उसको हम लोग यूज़ नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, आप अगर देखेंगे कि सबसे पहला कम्युनिकेशन वन विभाग ने जब ये कानून बना तो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को लेके किया, लेकिन आज तक हमारे देश में क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है नहीं। वो किस लिए नहीं है? क्योंकि जिस दिन आप क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट बना देंगे, ये कानून कहता है कि उसको आप डाइवर्ट नहीं कर सकते किसी और पर्पस के लिए। तो ये कारण है कि हमने कभी भी इस क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कॉन्सेप्ट को कभी भी आगे बढ़ावा ही नहीं दिया, क्योंकि हम इसका डाइवर्जन नहीं कर सकते हैं कानूनी रूप से। तो ये एक कंजर्वेशन टूल का इससे बड़ी शक्ति और क्या हो सकती है। लेकिन हम लोगों को ये शायद दोबारा सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। और
जहाँ तक री इमेजिनेशन का सवाल है, मुझे लगता है कि आज की डेट में जिस तरह से वन डाइवर्ट हो रहे हैं या फ्रैगमेंट हो रहे हैं हैबिटेट, मुझे लगता है कि FRA एक बहुत बड़ा टूल हो सकता है, बहुत बड़ा अस्त्र हो सकता है कि हम इस पे एक लगाम डाल सकें। क्योंकि जब तक हम कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स को एक कलेक्टिव राइट के रूप से ना देखें, जिस तरह से एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज इस पे काम करती हैं, और इसका जब तक हम वर्चस्व नहीं स्थापित करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि इस कानून को हम दोबारा से उस तरह से देख पाएंगे। इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट की बात होती है, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की बात होती है, कंजर्वेशन मैनेजमेंट प्लानिंग की बात हो रही है, हैबिटेट राइट्स जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो उनके जो हैबिटेट राइट्स की बात हो रही है। मुझे लगता है कि ये सारे ऐसे अस्त्र हैं जो कॉमन्स को सिक्योर कर सकते हैं हमारे देश में, और उसको हम लोग को इंटीग्रेटेड रूप में सोचना पड़ेगा, तभी जाके हम शायद इस कॉमन्स को बचा पाएंगे और उसके लिए आगे हम कार्य कर पाएंगे। और इसके लिए जाहिर है जो हमने इकाई बनाई है वो है ग्राम सभा, और ग्राम सभा के निचले स्तर पे गांव सभा जो हैमलेट के लेवल पे है। और अंत में मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि इस पूरे व्यवस्था में हम लोग एक कहते हैं ना, देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम दैट वी इग्नोर, और वो है शेड्यूल्ड एरिया के अगर कॉन्टेक्स्ट को देखें आप, जो वन अधिकार कानून जिसमें काफ़ी अच्छे से लागू होना चाहिए, वहाँ पे हम गवर्नर की बात नहीं करते हैं जिनका एक स्पेशल रोल होता है। हम ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की बात नहीं करते हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जिनका काम है इस व्यवस्था को और सुदृढ़ करना। लेकिन वहाँ भी हमने देखा है कि बहुत कम इस पे है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का भी एक बहुत अहम रोल है क्योंकि शेड्यूल्ड एरियाज़ उनके अधीन आता है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जब कानून बना तो एक नॉन फाइनेंस बिल था, इसके लिए पैसे नहीं दिए गए थे। तो अब हम ढूंढते हैं कि वो पैसे कहाँ हैं इस कानून का क्रियान्वयन करने के लिए, और नॉन फाइनेंस बिल होने की वजह से इस कानून के लिए कभी भी पैसे डायरेक्टली नहीं दिए गए थे। एक बहुत बड़ा अहम चीज़ है जो बहुत कम लोग जानते हैं, हम लोग चूँकि उसमें थे इसलिए थोड़ा बहुत खबर है। तो मुझे लगता है इन सब विभागों को एक बार दोबारा देखने की ज़रूरत है, और उनको साथ जो कहते हैं ना, यू हैव टू ब्रेक द साइलोज एट द एंड ऑफ द डे, उसको लेकर जब तक आप काम नहीं करेंगे, सब एक सामूहिक रूप में जब तक इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, वी रियली कैन नॉट री इमेजिन FRA। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वेरी क्लियर एंड आर्टिकुलेट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 सेट ऑफ थॉट प्रोसेसेस यहाँ पर हमारे सामने है। वी हैव अनदर 10 minutes which means we will just open it up to the group here, and yes, is there somebody with a mic somewhere? Yeah. So yeah, we'll start here because only my right eye spotted this, my left eye spotted that, so we'll start here. That's the only reason. Yeah, one short, huh? Because we'll try and get as many, जितने questions हम लोग ले सकते हैं लेंगे, ताकि so please make your intervention short. Yeah, thanks. हेलो, नमस्कार, मैं प्रखर हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से। क्योंकि हम FRA को जब रीइमेजिन करने की बात कर रहे हैं तो कई बार FRA के फ्लॉस की बात होती है, क्योंकि FRA को पैसा से तुलना किया जाता है कई बार कि पैसा इतना अच्छा कानून बना लेकिन कभी ज़मीन पर उतने अच्छे से उतर नहीं पाया। FRA इसलिए उतर पाया कि आखिरी में कागज़ तो मिलता है। अब उसमें खास करके 5th शेड्यूल एरिया की जब हम बात करते हैं तो खास करके 5th शेड्यूल एरिया का एक अवधारणा ये है कि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की बहुल्यता है, दे आर इन डोमिनेंस, तो वहाँ की ज़मीन भी प्राइमरीली अनुसूचित जनजाति की मानी जाएगी, चाहे वो कॉमन्स क्यों ना हो। समता जजमेंट जो उसका मुख्य आधार था कि भाई शेड्यूल्ड एरियाज़ में नॉर्मल ज़मीन भी, कॉमन्स भी, या IFR की जो लैंड भी है वो भी अनुसूचित जनजाति का माना जाएगा। OTFD को जब रिकॉग्नाइज़ कर देता है FRA अन्य परंपरागत वन निवासी को, तो उसमें क्या है कि FRA में हम सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़ी गलतियाँ हुई कि बहुत गलत टाइटल्स IFR के मिले, और OTFD इतने बड़े मात्रा में वहाँ पर अभी टाइटल्स जारी हो गए हैं कि वो 5th शेड्यूल का नेचर ही चेंज हो गया। मतलब आप में से दो लोग झारखंड के बैकग्राउंड से तो जानते हैं कि आबादी 26% बची है आदिवासियों की। छत्तीसगढ़ जो ट्राइबल स्टेट के नाम से बनाया गया 31-32% आबादी नहीं बची है। तो वो प्री डोमिनेंस FRA ने वो अवधारणा को ही तोड़ दिया, और एक कॉन्शियसली भी तोड़ा मुझे लगता है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। तो एक सवाल ये था कि इसको क्या हमको रीइमेजिन करने की ज़रूरत है। एक छोटा सा दूसरा पॉइंट, कम्युनिटी राइट्स में जो संजय जी भी बोल रहे थे कि
जैव विविधता, बौद्धिक संपदा, पारंपरिक ज्ञान का अधिकार की बात करते हैं। कम्युनिटी राइट्स में बाकी राइट्स को लेकर अच्छी समझ बनी, इवन हैबिटेट राइट्स को लेकर समझ बनी है, लेकिन हाउ टू क्लेम दैट राइट? लोग लिख देते हैं हमारे ये ट्रेडिशनल राइट्स हैं, पारंपरिक संपदा, जैव विविधता, बौद्धिक संपदा, पारंपरिक ज्ञान के अधिकार, लेकिन उसको लेकर अवधारणा आई थिंक, क्योंकि आप ड्राफ्टिंग में थे सारे लोग, तो क्या सोच थी, आई थिंक थोड़ा सा उसको रीइमेजिन कर दें तो दैट वुड बी ग्रेट। थैंक यू। कैन द बाइक ट्रैवल है? विल कलेक्ट कुछ सवाल लेके फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेरा नाम तुषार है। 2 पॉइंट जोड़ना चाहूँगा। एक तो जो आप कह रहे थे संजय जी की री इमेजिनेशन के साथ साथ रीविजिटिंग की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे जो फॉरेस्ट राइट एक्ट की स्पिरिट थी वो अभी तक हमारे अंदर भी नहीं आता है हमारे काम में। उसमें एक ज़रूरी बात है कि जहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात है वो क्लेम या रिकॉग्निशन तक सीमित नहीं है, वो गवर्नेंस का एक लेजिस्लेशन है और यही आगे का री इमेजिनेशन होगा। तो इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट प्रावधान है टू डिक्लेयर CFR एंड CFR बेस्ड गवर्नेंस बाय ग्राम सभा, मुझे लगता है कि आज की स्थिति में उसको हमको देखना पड़ेगा, एक इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म टू अलाउ असर्शन ऑफ राइट्स एंड टू एनेबल दैट काइंड ऑफ असर्शन थ्रू सपोर्टिव प्रोसेस। एक ये है। दूसरा ये बात अभी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जो अभी कंजर्वेशन और क्लाइमेट चेंज के पॉलिसीज़ हैं और उसके कॉन्टेक्स्ट में जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट हुआ है वो एक व्यापक परिवर्तन है। द आइडिया ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट एंड नाउ हाउ इट इज़ बीइंग टर्न इनटू ए प्राइवेट फॉरेस्ट इन इंडिया थ्रू क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज़, कार्बन पॉलिसीज़, ग्रीन क्रेडिट रूल्स। तो उसको भी रीथिंकिंग और रीफ्रेमिंग ऑफ दोज क्लाइमेट चेंज पॉलिसी और कंजर्वेशन पॉलिसी करना चाहिए अराउंड द फॉरेस्ट राइट एक्ट, CFR बेस्ड गवर्नेंस और आदिवासी के अपने जो आइडियाज़ और गवर्नेंस है उसके अराउंड, उस पर चर्चा जरूर करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू तुषार। सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं अरविंद झा। मैं 5-6 पॉइंट्स हैं लेकिन मैं ज़्यादा एलाबोरेट नहीं करूँगा। मैं बेसिकली फील्ड की बात करूँगा। पहली चीज़ ये है कि हमारे हिसाब से ये एक्ट बेसिकली OTFD एंड FDST के लिए बना, और जहाँ तक अधिकार देने का सवाल है किसी चीज़ को मैनेज करने का वगैरह, तो उसके लिए हम ग्राम सभा को लाए, विलेज कम्युनिटी को लाए अंडर सेक्शन 5। ये 2 चीज़ों को तोड़ करके हमने अनफॉर्चुनेटली जो अमेंडमेंट आया उसमें कई नए लोगों को डाल दिया इसमें। You can revisit the amendment. That is what is my suggestion, because that has included so many people. I mean, just one example is Annexure 4 पढ़िए, उसमें कहते हैं कि जो एप्लीकेंट है वो एप्लीकेंट ग्रुप में अगर 2-4 भी हो OTFD और FDST तो वो एप्लीकेशन हो सकता है। भाई हमने कहाँ से किसको टारगेट किया था और कहाँ ले गए इसको, वो एक बहुत बड़ी मेरे हिसाब से सोचने की चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि कंजर्वेशन जो है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो फील्ड में हो रहा है, और इसे कृपा करके कोई ये ना समझें कि मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। मुद्दा ये है कि हमको जब ये एक्ट इम्प्लीमेंट करना है और इसकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ानी है तो वी हैव टू डू समथिंग जो कि सही दिशा में ये जाए, तो उस हिसाब से इसको पॉजिटिव लिया जाए। सो दैट इज़ मल्टीप्लिसिटी ऑफ, जैसे बायोडाइवर्सिटी एक्ट है उसके हिसाब से अगर सिस्टम को रखें तो वो बहुत सारा सपोर्ट कर देता है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को बचाने में। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग बायस है अभी जैसे एग्जिस्टिंग वेज ऑफ मैनेजमेंट में। हमारे सामने एक बेसिक प्रॉब्लम है कि हर गांव को हमने मान लीजिए कि मैनेजमेंट राइट दे दिए, तो किसी को 112 हेक्टेयर मिला, किसी को 200 हेक्टेयर मिले, किसी को 300 हेक्टेयर मिले, वो सभी अपने अपने मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे। नाउ व्हाट हैपन्स टू द लैंडस्केप मैनेजमेंट, जो कि कंजर्वेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो वाटरशेड के लिए ज़रूरी है, जो आपके पानी यहाँ जो आप पानी पी रहे हैं उसके लिए कोई बंदा वो पहाड़ों पे संभाल के रख रहा है आपके लिए जंगल, उसको आप कैसे करेंगे। अगली चैलेंज ये आने वाली है कि हमारे जो गांव इस तरह से फ्रैक्चर्ड हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ मे बी कास्ट, रिलीजन, एवरीथिंग इंक्लूडिंग टॉप ऑफ इट इज़ पॉलिटिक्स। वहाँ पे आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की बात ऐसे रिसोर्सेज के साथ कैसे कर रहे हैं, जबकि हमारे लिए वो बंदे के लिए जो जीतता है वहाँ पे वो सरपंच समहाउ ही डोमिनेट्स एंड देन ही स्टार्ट्स प्लेइंग द कार्ड्स फ्रॉम हिज साइड। ये एक बहुत ही मेजर इशू है जो पुराने ज़माने में नहीं था। उस समय की जो पंचायत सिस्टम थी बिल्कुल ही अलग थी। आज जो इलेक्टोरल सिस्टम में आप घुसे हैं
उसके कारण ये बहुत ही फ्रैक्चर हो गया है. एंड हाउ टू टैकल इट, दैट विल डिटर्मिन द फ्यूचर ऑफ FRA, एंड दैट विल ऑल्सो डिटर्मिन द फ्यूचर ऑफ द फॉरेस्ट एज सच और कंजर्वेशन एज सच. देन हाउ टू इंसुलेट फ्रॉम मार्केट फोर्सेस. आज जहाँ पे अभी तेंदुपत्ता का जैसे लोगों ने किया है, वी नो हाउ पीपल आर गेटिंग फ्लीज्ड बिकॉज दे हैव ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल विद देम. वो बंदे बाजार से आते हैं और कहते हैं हमारे को इस रेट पे दे दो, एंड दे हैव नो ऑप्शन. सो या तो फेडरेशन करिए, कुछ इस टाइप की चीज़ें उसमें लानी पड़ेंगी ताकि ये जो है सर्वाइव करे. एंड फाइनली हु कंट्रोल्स एंड हाउ इट विल बी कंट्रोल्ड द मैनेजमेंट ऑफ रादर द राइट्स का जो आपका मैनेजमेंट है. FR तो दे दिया हमने, बट FR का मैनेजमेंट इज़ गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज फॉर ऑल द कम्युनिटीज़ एंड ऑल द ग्राम सभाज. हमने हर ग्राम सभा को कम्युनिटी समझ करके उनको कम्युनिटी राइट्स दे दिए हैं, विच इज़ नॉट ट्रू इन विलेजेस विच हैव different types of populations. Yes, in Adivasi villages they are perfectly all right, but there are villages जहाँ पे कि non-tribals हैं, they have become the bosses. और आज हमारा कितने 2006 का एक्ट है, आज हमारे OT, FD और FD/ST को जाकर के एक बार इंटरव्यू करके देख लीजिए कहाँ पे हैं वो. Has anything changed despite the fact कि 2008 में उनको हमने IFR दिया, या 2012 में there are villages जिसको हम लोगों ने CFR दिया हुआ है, मैनेजमेंट के CFR दिए हैं, एंड वन ऑफ द बेस्ट विलेजेस इज इन महाराष्ट्र. व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग. इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू मैनेज पॉलिटिक्स, एंड दैट टू व्हेन इट बिलोंग्स टू रिसोर्सेज, जहाँ पे कि हमारा इमीडिएट बायस किसी भी बंदे का होगा कि भैया इसको 5 साल का हमारा टेन्योर है ना, इसको काट लो यार, हमारे टाइम में पैसे आएंगे, आई कैन बिल्ड समथिंग सो दैट वी कैन गेट वोट्स अगेन, एंड दैट इज़ हैपनिंग. यू नो, सरपंचेज आर capturing the posts of Koshadhyaksh in Pesa villages. Who can prevent that? I mean, so this is something, the dynamics, these are going to come up as a big challenge to before all of us who are trying to see that the democratization should happen and it should yield good FR management and also conservation. It's a big issue. Thank you. Thank you, sir. Thank you for that reality check. How much more time do we have? 5 minutes? No. That's okay. But okay, one last intervention and then 1 minute each to all of you to respond. Because I can get 20 seconds. Yes. मैं सर की चीज़ को एक कंटिन्यू करके बोल रही हूँ कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस का अभी सेली, सॉरी, माय नेम इज चेतना, आई एम फ्रॉम गढ़चिरौली, आई एम वर्किंग विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. और इस काम करते समय कुछ चीज़ें जो सामने आई, उसमें से NTFP के बारे में जो एज अ फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड आदिवासी कम्युनिटी के लिए हम बात कर रहे हैं, पर एज अ कलेक्टिव प्रोक्योरमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट कहीं हम इस्टेब्लिश कर रहे थे, वो धीरे धीरे पूरा ही इरेगेट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनल एस्पिरेशंस है. तो एज ए इंडिविजुअल कलेक्ट करना और बेचना ये तो हो ही रहा है, पर कुछ जगहों पे जहाँ CFR ग्राम सभा ने कलेक्टिवली प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस की, पर जो लीडर्स है जिनकी तरफ से चीज़ें कुछ इतनी गलत तरीके से गई है, क्योंकि हमारा कुछ स्टडी रहा जहाँ पे कुछ ब्लॉक्स है जहाँ 11-11, 12-12 करोड़ रुपए अभी भी पेंडिंग है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे दिए ही नहीं, और जस्ट बिकॉज ऑफ इलिटरेसी और जो लिख के रखने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं हो पाए. तो ऐसी जो कठिनाइयाँ अभी आ रही है, इसको हम एज अ लाइवलीहुड के रूप में जंगल को देखते हुए कैसे आगे बढ़ेंगे, ये एक बात रहेगी. सेकंड थिंग, सिविल सोसाइटीज़ तो काम कर रही है, पर आखिरी में डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और उनके ऊपर हो रही है. और अभी सभी जगहों पे ब्लॉक कन्वर्जेंस कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जेंस कमेटी, इस तरीके की कमिटीज़ बन रही है, बट इज़ नॉट वर्किंग. तो इसको अभी आगे अगले कुछ दिनों में या कुछ सालों में इसको जितना हम कैपेबल कर पाए, ताकि इस पूरी प्रोसेस में जहाँ फिर नरेगा के थ्रू काम करना हो या फिर उनकी प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस को थोड़ा सा इस्टेब्लिश करना हो या फिर बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की हेल्प करना हो, तो क्या हम इसको अगला हम पड़ाव देख सकते हैं, इसके ऊपर हम जानना चाहेंगे. थैंक यू. Thank you. After a lot of reality check, please reimagine the future in 1 minute. In 1 minute, and I'll go with the same pattern and same sequence. Sanjay da. झारखंड में 154 गांव बचा हुआ है, पुराना मॉडल का कॉमन्स,
अंग्रेज से पहले का कॉमन्स बचा हुआ है 154। एक बार देव जी ने हमको कहा कि कंपेयर किया जाए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा मैनेज किया हुआ गांव 5 ले लो और 5 पुराना जो हमारे कॉमन्स है उसको ले लिया जाए, कंपेयर किया जाए हु इज़ द बेटर मैनेजर। तो प्रमाण हो गया कि हमारे पुराने जो कॉमन्स जिंदा है आज भी, वहाँ अभी भी ऊपर से आप देखेंगे पूरा जंगल दिखेगा और बाकी आसपास का देखिए जंगल साफ। तो देखिए मैनेजमेंट की बात आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर नहीं सकता है, उसने किस तरह मैनेजमेंट किया वो सारा जग जाहिर है, सारा दुनिया दिखा है। उनको ये बोलना शोभा नहीं देता है कि भाई गांव के लोग कैसे मैनेज करेगा, ये तो बैड मैनेजर है। जो बैड मैनेजर है अभी 18 साल में, छोड़ दीजिए आप किसको पट्टा मिला किसको नहीं मिला, लेकिन जिन लोगों ने प्रयास किया है, जिन गांवों ने प्रयास किया है, उनका जंगल जाके देख लीजिए। हम तो कहते एक सर्वे कर दिया जाए कि जिन लोगों ने इस तरह बनाया है उनका जंगल का हाल क्या है और जो अभी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हाथ में है उनका हाल क्या है। थैंक यू। साथ में एक पॉइंट ऐड करेंगे केवल, हाँ, एक बड़ा दुश्मन हमारे सामने खड़ा है, वो डेवलपमेंट का जो मॉडल पैराडाइम हम लोगों ने अपनाया है, इस पर भी चर्चा हुई है पहले कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का साथ एफआरए को कैसे जोड़ा जाए, ये एक अद्दा मुद्दा है, सोचना चाहिए। थैंक यू। Thank you so much for your 1 minute. I mean, I agree that conservation is definitely a challenge, and it is not a foregone conclusion that the FRA can take care where others have come before and failed. But I think I go back to the point I made about process versus outcome. I think we have attempted to do conservation in ways and failed. If you look at the diversions that are happening and the places where the forest department is utterly powerless in preventing diversions of forests, if you look at that, it's humbling. So I think to try an alternate model, after all, the forest department has had 160 years plus trying to do this, and here is where we are. Why would we not give this a bit more time? Why would we not give this a bit more support? And I think these alternate models need to flourish. Of course, there are risks. There have been risks with having a forest department. Why would we not want to try with other kinds of risks? We need, for the diversity of the biological and cultural diversity that we have in this country, there is no alternative but to deepen democracy. Pooja, and then I'll come to you. Yeah. She's got a mic. So FRA, what it does is actually gives a legal framework on, if I can put it again in the terms of NTFPs and markets, on community-based NTFP management, balancing between conservation as well as livelihoods needs. लेकिन अभी भी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन या इम्प्लीमेंटेशन गैप्स को आइडेंटिफाई करके उस पर काम करना, साथ साथ उस तरह के मार्केट स्ट्रक्चर्स को अभी भी क्रिएट करने की आवश्यकता है, और एंड इट विल टेक quite some time, and as you rightly pointed, sir, there is need for those local community institutions, strengthening those institutions so that they are able to negotiate with the people, be it from the political system or be it from the market forces. So that is very critical. Plus आपने बात किया, मैंने मेंशन किया था वाटरशेड के कुछ उदाहरण हैं जिसमें पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज को ट्राई किया गया है। तो उस तरह के और उदाहरणों का, और बी इट कॉर्पोरेट्स, बी इट गवर्नमेंट, अदर पीपल, बी द यूजर्स ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज, उनको आगे आने की आवश्यकता है। उस तरह के मॉडल्स डेवलप करने की आवश्यकता है कि ये जो इकोसिस्टम सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं इनको पे कौन करेगा, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। सो यस, दैट्स व्हाट आई वुड वांट टू क्लोज विद। Thank you. Thank you. Okay, I just repeat this, that just as the FRA is based on recognition of what was existing, the rights, but we also need a recognition of knowledge. If we decry that and say this is not knowledge, it will be of no use if we recognize rights, but we have to understand that this is knowledge and help it also become that which can be an important part of a future for sustainable development. Thank you. मैं बस इतना कहूँगा कि ये एक ऐसी नई व्यवस्था है जो पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की बात करता है, और जब भी एक नई व्यवस्था पुरानी व्यवस्था की बात करता है तो कॉन्टेस्टेशंस होना स्वाभाविक है। वन विभाग हो, चाहे वो आदिवासी कल्याण विभाग हो या पंचायती राज विभाग हो,
ये सभी अपने अपने साइलोज में काम करते हैं, ये सबको पता है, और उस वाटर टाइट कंपार्टमेंट को तोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक नंबर ये एक बात है। दूसरी बात है कि जब एक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से दूसरे पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन पे देश चलता है तो उनकी जो प्राथमिकता है वो अलग होती हैं। अब कई लोग ये सोचते हैं कि ये कांग्रेस का कानून है, हम भाजपा वाले क्यों इसको आगे बढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक माइंड में रहता है, और वो आपको उस राजनीति को आप बिल्कुल उसका जब आप धरतीकरण करते हैं तो भी आपको दिखता है कि कई जगह इस कानून को बढ़ावा इसलिए भी नहीं दिया जाता कि ये शायद हमारी व्यवस्था नहीं थी और ये किसी और सरकार की थी। तो कहीं ना कहीं हमको उस छोटी सोच से उठना पड़ेगा, उभरना पड़ेगा, ताकि हम जब, क्योंकि हर विभाग ये कहता है हम सस्टेनेबल फॉरेस्ट और सस्टेनेबल लाइवलीहुड की बात करते हैं। अगर ये सस्टेनेबल फॉरेस्ट और सस्टेनेबल लाइवलीहुड दोनों का उद्देश्य है तो फिर अपवाद कहाँ है? वेर इज़ द डाइकोटमी इन दैट? सो आई थिंक वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स दैट सस्टेनेबल forest and sustainable livelihood through the system that we have, build on the system that we have. That's all I have to say. थैंक यू। आप लोगों के सवालों के जवाब और चाय के बीच में बहुत मतलब समय का अंतर होने वाला है, इसलिए वील हैव टू एंड दिस। एंड जिनके सवालों का जवाब नहीं उमड़ के आया है, वी हैव दीज गाइज एट राइट देयर एट चाय, सो प्लीज़ वी कैन कैरी ऑन द कॉन्वर्सेशन। मुझे सिर्फ दो सेकेंड दीजिए टू जस्ट क्लोज इट प्रॉपरली बिफोर द प्रोसेस हैज़ टू हैपन। आई थिंक बहुत कुछ कहा गया है, एंड आई थिंक वन ऑफ द मेन टेक अवेज इज़ फॉर द फ्यूचर। अगर हम ये देखें कि FRA इज़ अ मीन्स एंड नॉट द एंड, वो ज़रिया है कुछ और उद्देश्यों की तरफ, ना कि वो अंत है of the process. And if it's seen as a means to achieve conservation, means to achieve development, means to reorder society or reorder people, I think all that is fine. I think that philosophy needs to be coming back in this entire process in whichever way we want to go ahead. And that has to be achieved through either existing already empowered जो गांव सभा या ग्राम सभाएं हैं, या उनको रिवाइटलाइज करना है तो उस प्रोसेस के थ्रू, एंड ऑफ कोर्स द एलिफेंट इन द रूम इंश्योरिंग दैट फाइनेंशियल इनपुट जो शायद वो एनविजनिंग में, क्योंकि हम इसको रीऑर्गेनाइजिंग कर रहे थे, वो शायद वो दैट वाज नॉट entirely thought out. Thank you for this opportunity. I just need 2 minutes. I request Kanchi ma'am to please felicitate the speakers. You want to choose a color? Green? Okay, let me start with choice of color. Particular pattern. Color preference? Plenary. Color preference? Choice, we're in democracy. No? Shouldn't be choosing for you. Brown. Variety, diversity. Brown. Only two. You have scrap. The scraps are left. Yeah, I know. I would now request Reetama ma'am to felicitate Kanchi ma'am. Oh, I'm getting which one? Brown, please. Which one? Brown. Have one green. Thank you all for waiting for us. Do all this.
Please note that the next session is going to happen in Beam. It's the closing session, so please have your teas and join for the session by 3:30. 3:45. Thank you. Good panel.